Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 8, Mapping Your Way from class 5th, Maths semester 1. The sea. Bala is standing on the sea coast and looking at the vast sea. The sea looks endless. Have you seen the sea? क्या आपने कभी भी कोई sea देखा है? In the picture, where is the sea? तो इस पिक्चर में जो sea है वो कहाँ पे दिखाया गया है? So here is Bala standing and opposite to Bala the sea is shown. Now look for the sea in the map of India. What color is used to show the sea? तो आप इंडिया के मैप में देखिए कि इंडिया के मैप में सी कहाँ दिखाया गया है और कौन से कलर को यूज़ किया जाता है सी को दिखाने के लिए. सो ब्लू कलर इज़ यूज्ड टू शो द सी. मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड. अब ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनकी एक साइड पे सी होता है? सो Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal are such states which have the sea on one side. Name one state which does not have the sea on any side. अब एक ऐसे स्टेट का नाम बताइए जिसकी किसी भी साइड पे सी नहीं है. So Bihar is one example of states which do not have sea on any one side. Now look for different maps, compare the different scales used in a local area map, a map of India and a world map, etc. Line between the states. So Sabu is confused about the lines shown between the states. I travelled from Delhi to Haryana but I never saw any lines on the ground. How do we see them on the map? तो यहाँ पे जो साबू है वो ये बोल रहा है कि हम लोग जब दिल्ली से हरियाणा जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने तो ग्राउंड पे कोई भी लाइंस नहीं देखी. लेकिन जब हम मैप देखते हैं तो मैप में तो हमको लाइंस दिखती हैं. सो द अनदर बॉय सेइंग नो देयर आर नो लाइंस पेंटेड ऑन द ग्राउंड. तो दूसरा लड़का बोलता है कि ग्राउंड पे कोई भी लाइंस नहीं बनी होती. द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिंस. तो मैप पे हमको लाइंस इसीलिए बनी हुई दिखती है ताकि हमें ये पता चले कि कहाँ पर एक स्टेट एंड होता है और दूसरा शुरू होता है. ओ यस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर. तो साबू को याद आता है कि हमने बॉर्डर पे टोल टैक्स पे किया था. आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा. मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा था जिस पे ये लिखा था कि हरियाणा में आपका स्वागत है. नाउ हियर मैप 6 इज गिवन. डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स. दिस आर 5 टाउन्स. तो यहाँ पे 5 टाउन्स आपको दिखाए गए हैं. इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर एंड छोलाघाट. नाउ हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप. तो मैप में इडलीपुर बर्फीनगर से कितने डिस्टेंस पे है? सो इफ़ यू टेक द स्केल you can see here 1 centimeter on the paper equals to 10 kilometer. So if you take the scale 1, 2, 3, 4 and 4 point something, so when you exactly measure with this scale it will come 4.7. So the distance between is 4.7 centimeter. So Idlipur is 4.7 centimeter away from Barfinagar on the map. Second, how many kilometers will you have to travel if you go from Idlipur to Barfinagar? आपको कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप इडलीपुर से बर्फीनगर जाओगे? सो द स्केल ऑफ द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर. तो यहाँ पे हमको स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर. सो दैट मीन्स 4.7 मल्टीप्लाई 10. So it will come 47 kilometer. So distance between Idlipur to Barfinagar will be 47 kilometer. Now there is a place called Thukpagram midway between Idlipur and Barfinagar. Mark it with a T. So Idlipur और बर्फीनगर के बीचों बीच में एक जो जगह आती है, एक जो जगह है, प्लेस है, उसका नाम है ठुकपग्रम. तो आपको यहाँ पे मैप में उसको मार्क करना है. So you can mark here with T. Now a town called Jalebipur is 35 kilometers away from both Cholaghat and Dholkabad. Now where do you think it can be? So mark J for it. So you can see here that here it is Cholaghat and here it is Dholkabad. Now between Cholaghat and Dholkabad, the road is in a curved manner. So you cannot measure with a scale. So what you can do, you can take a thread, keep a thread like this and afterwards keep that thread and measure with a scale. So you will come to know ki what is the distance. Now measure the length of the route between Bhelpur and Cholaghat. तो आप क्या करोगे, ये जो लेंथ है
भेलपुर और छोलाघाट का इसको किस तरीके से करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक थ्रेड की मदद से. सो व्हेन यू विल डू, यू विल कम टू नो दैट 5.5 सेंटीमीटर. सो उसको हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर इफ इट कम्स इन द मैप, सो it will be multiplied by 10 because scale it is given that 1 centimeter on the paper equals to 10 kilometer. So 10 multiply 5.5, that is 55 kilometer. Okay, now here map 7 is given. You can see Ashi school. Ashi school looks like this from the top. अब जब आप आशी का स्कूल देखते हो तो ऊपर से ये इस तरीके से कुछ दिखता है. Now use the squares to find out. तो हमको ये इन स्क्वायर्स की मदद से जो क्वेश्चंस दिए हैं नेक्स्ट पेज में उसको फाइंड आउट करना है. हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज़ द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन द ऑफिस. तो जो असेंबली ग्राउंड है वो ऑफिस से कितना बड़ा है, कितनी टाइम बड़ा है, तो इट इज़ 5 टाइम्स बिगर. सो व्हेन यू विल सी दैट मैप यू विल कम टू नो इजीली. हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम. हर एक क्लासरूम की जो लेंथ है और विड्थ है वो कितनी है. सो द लेंथ इज़ 5 मीटर एंड द विड्थ इज़ 4 मीटर. ऑल द क्लासरूम्स इन अशी स्कूल लुक लाइक दिस. तो आप यहाँ मैप 8 देख सकते हो कि अशी का जो स्कूल है उसमें जो क्लासरूम है वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो विंडो इधर है, अलमीरा यहाँ पे दिया है, यहाँ डिस्प्ले बोर्ड दिया है, जस्ट डिस्प्ले बोर्ड के अपोजिट साइड पे ब्लैक बोर्ड दिया है, विंडो की इस तरफ आपको डोर दिया है और यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड दिया है. तो लुक केयरफुली एंड आंसर. नाउ विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड. तो ब्लैक बोर्ड के एकदम अपोजिट क्या आपको दिख रहा है, डिस्प्ले बोर्ड. सो हियर डिस्प्ले बोर्ड विल बी द आंसर. नाउ लुक एट द मैप, स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी. तो अब आप देखिए, जब आप वापस से स्कूल मैप देखोगे तो आपको इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है. ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 7th, अलमीरा इन 4th and 10th, notice board in 5th and 6th B, last seat of middle row in 2nd, display board in 1st. Now can a child sitting in 3rd A see the playground? क्या जो बच्चा 3rd A में बैठा है वो playground देख सकता है? So no, a child sitting in 3rd A cannot see the playground. Okay, so ये था हमारा चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन. बाय बाय.